جادو ٹونے کالے علم اور سفلی عملیات کے تانے بانے سے بنی ایک نوجوان کی کہانی جو انجانے میں طاغوتی طاقتوں سے ٹکراؤ کے راستے پر چل نکلا تھا۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے خوفناک، پر اسرار، سنسنی خیز کہانی سیاہ دھند۔ حقیقی بات تو یہ تھی کہ وہ آصف کے متعلق ابھی تک کوئی رائے قائم نہیں کر سکی تھی کہ وہ کس طبیعت کا آدمی ہے۔ کبھی تو وہ ایک خوش مزاج اور شوخ سا نوجوان دکھائی دیتا، اور کبھی یوں لگتا جیسے وہ کوئی صدیوں پرانی کسی خشک مزاج بوڑھے کی بدروح ہو۔ پھر مغرب کی اذانیں شروع ہوئیں تو تینوں ماموں، خالو سید خلیل الحسن اور سید بشیر الحسن سبھی نماز کے لیے مسجد کو چلے گئے، اور ان کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد آصف آ پہنچا۔ واصف، افتخار، عابد، آسمہ، مسرت، عظمیٰ اور ماہنور ایک ہی کمرے میں موجود تھے۔ آصف دروازے پر ہی رک گیا اور اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ آصف پر نظر پڑتے ہی واصف قدرے ترش لہجے میں اس سے مخاطب ہوا۔ یار، یہ کیا بےہودہ حرکت تھی؟ ماموں آئے ہوئے تھے اور تم بغیر کچھ بتائے غائب ہو گئے۔ آصف نے ایک نظر واصف کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں کوئی ایسی بات تھی کہ واصف، جو گھر میں کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا، اس کے آگے کچھ بھی نہ بول سکا۔ ماہنور نے بھی بڑی گہری نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اس کے سامنے آصف کا ایک اور ہی روپ تھا۔ آصف نے واصف کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر عابد کو مخاطب کیا۔ عابد، باہر کرمو بلا رہا ہے تمہیں۔ اتنا کہہ کر وہ واپس پلٹ آیا۔ عابد بھی اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکل آیا اور بیرونی جانب بڑھنے کی بجائے آصف سے مخاطب ہوا۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ آصف نے ایک گہری نظر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ آئی۔ آصف میاں، تمہیں بے عزتی کروانے کا بہت شوق ہے کیا؟ کیوں جی، میں نے آپ کی کون سی گدی کی دم کو ہاتھ لگا دیا جو آپ میری بے عزتی کریں گے؟ اسد افتخار کی جانب پلٹ پڑا۔ مجھے پتہ ہے کرمو کل کا سیالکوٹ گیا ہوا ہے، عابد نے سنجیدگی سے کہا۔ کہو، کیا مسئلہ ہے؟ عابد، میں تم سے بہت ہی ضروری گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رات کو جب گھر میں سکون ہو میرے کمرے میں آ جانا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کھانا بھی اس نے اپنے کمرے میں ہی لیا۔ اس کا ارادہ آج محفل میں بیٹھنے کا نہیں تھا، مگر سبھی اس کے کمرے میں گھس آئے کہ آؤ ہمارے ساتھ، تمہارے بغیر گپ شپ کا مزہ نہیں آتا۔ اس سے پہلے ان میں سے کوئی بھی آصف کے کمرے میں نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ واصف اور عابد بھی نہیں۔ آج کئی سال بعد وہ اس کمرے میں داخل ہوئے تھے، اور کمرے میں داخل ہو کر سبھی دنگ رہ گئے تھے۔ سب سے آخر میں عظمیٰ اور ماہنور کمرے میں داخل ہوئیں، اور کمرے کی اندرونی حالت دیکھ کر ان کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ 3 دیواروں میں بنی ہوئی 3 الماریاں کتابوں سے بھری ہوئی تھیں۔ تینوں دیواروں کے ساتھ بنی ہوئی شیلفوں پر بھی کتابیں تھیں جو چھت کے ساتھ لگ رہی تھیں۔ کمرے میں 2 پلنگ، 1 کرسی اور 1 ٹیبل تھی۔ ایک پلنگ تو خالی تھا، جبکہ دوسرے پر کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ٹیبل پر چند موٹی موٹی کتابیں اور اسٹیشنری کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ کچھ کاغذ تھے جن پر ہاتھوں کے پرنٹ اور ذائچے بنے ہوئے تھے، اور ان کاغذوں پر ایک موٹا عدسہ دھرا ہوا تھا۔ ایک طرف دیوار پر شیشہ لگا دکھائی دے رہا تھا، جس کے بالکل وسط میں ایک سیاہ دھبا نظر آ رہا تھا۔
छत के साथ एक ट्यूब नुमा शीशे का राड बारीक डोरियों की मदद से लटकाया गया था, जिसके अंदर एक स्याह रंग का मुर्दा सांप नजर आ रहा था। दाईं तरफ की दीवार के साथ फर्श पर चंद तश्तरियां तरतीब से रखी हुई थी, जिनमें कई किस्म की टहनियां, जड़ें और पत्ते पड़े थे, और उनके साथ चंद कच्चे घड़े रखे थे जिनके मुंह कपड़ों से बंधा हुआ था, और उन घड़ों के पास ही प्लास्टिक के जार नजर आ रहे थे, और ना जाने क्या क्या कुछ वहां मौजूद था। आसफ जब भी अपने कमरे में होता दरवाज़ा अंदर से बंद करके रखता था, और आज भी ऐसा ही था। पर दरवाजे की दस्तक पर जैसे ही उसने जंजीर हटाई, वो सब एकदम अंदर घुस आए थे और अब आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रहे थे, जबकि आसफ पलंग पर यूं सर झुकाए खामोश बैठा था, जैसे कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। आसफ के नज़दीक ये उसका स्टडी रूम था, मगर अब हर जहन में मुख्तलिफ राय थी। लाइब्रेरी, रिसर्च सेंटर, लेबॉर्ट्री, अजायब खाना, आसार कदीमा और ना जाने क्या क्या। दूसरों के साथ साथ वासफ, शाहद और जाहद की आंखें भी ये सब देखकर हैरत से दोगुना हो गई थीं। एक आबद था जिसके चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं था, अलबत्ता उसकी आंखों में कदरे हैरत और उससे ज्यादा तजस्सुस तड़प रहा था। कमाल है भाई, ये सब क्या है? इफ्तिखार अली इंतहाई ज्यादा हैरत से बोले। हमें तो पता ही नहीं था कि मौसूफ इतने ज्यादा एजुकेटर हैं। यार आसफ, तुम तो बड़े अच्छे छुपे रुस्तम निकले। कभी बताया ही नहीं कि इतना ज्यादा इल्म समेटे हुए हो। बड़ी गहरी चीज है ये। पर ये सब चक्कर क्या है? हम भी कहीं कि इतनी सी उम्र में पीरी मुरीदी का सिलसिला कैसे चल पड़ा। ये तो इल्म ही है ना था कि जनाब किताबी कीड़े हैं, पता नहीं क्या क्या दिमाग में हजम कर रखा है। इन किताबों की तादाद भला क्या होगी, ये उज़्मा थी। क्यों आसफ मियाँ, कुछ हिसाब रखा है कि ये किताबें कितनी हैं? इफ्तिखार ने आसफ को मुखातब किया। 3780, आसफ ने सरसरी से अंदाज में कहा। क्या ये सारी की सारी तुमने पढ़ रखी है? शाकिर हुसैन ने शदीद हैरत से कहा। नहीं, मैंने ये अचार डालने के लिए जमा की है, आसफ ने कहा। सभी तबसरे कर रहे थे, मगर महानूर खामोश थी। उसकी अजीब हालत हो रही थी। दूसरे लोग सिर्फ हैरत और तजस्सुस में मुब्तला थे, जबकि वो हैरत के साथ साथ एक नामानूस खुशगवार एहसास का शिकार थी। मगर ये बात उसकी अक्ल से मावरा थी कि ये अजीब हालत उसके दिमाग की है या दिल की। फिर वह सब किताबें उठा उठा कर देखने लगे। इसरार मख्फी, क्याफा शनासी, पामिस्ट्री, इल्म नजूम की हकीकत, फ़लसफ़ाए नजूम, कुलीद नफ्सियात, मुस्मरिज़म, वाह शायरी की किताबें भी हैं। उज़्मा ने आगे बढ़कर एक किताब उठा ली, कुलियात साहर, नुस्खा हाय वफा, फैज़ अहमद फैज़। बहुत खूब, दीवाने गालब। भाई पीरी मुरीदी का राज खुल गया आज तो। भाई ये देखो, अपने आसफ मियाँ तो हकीम भी हैं। बस्ताने मुफरदात और ये रमूज़े हिकमत। जनाब आसफ साहब, कुछ बताएं भी, क्या है ये सब? शाकिर हुसैन ने कहा तो आसफ बेजारी से बोला, घुघू घोड़े हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे क्या? नज़र तो आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये क्या करते रहते हो, क्या सीखा है, क्या हासिल किया है? अभी कुछ नहीं किया, जब कुछ हासिल कर लूँगा तब आपको ज़रूर इत्तला कर दूँगा। सबकी तवज्जो कमरे की तरफ या किताबों की तरफ थी, लेकिन आबद ने फ़ौरन महसूस कर लिया कि आसफ को उनकी यहाँ मौजूदगी अच्छी नहीं लग रही। वो जल्दी से इफ्तिखार से मुखातब हुआ। इफ्तिखार भाई, उठाएं इसे, इधर ले जाकर उसका तफसीलन इंटरव्यू लेते हैं। आसफ ने सर उठाकर आबद की तरफ देखा
तो आबद ने आगे बढ़कर उसका बाजू थाम लिया और साथ ही आंख से इशारा भी कर दिया, चलो उठो आसिफ। हाँ आसिफ मियाँ, आ जाओ ज़रा। और फिर वो सब उसे लेकर बड़े कमरे में आ गए और रात गए तक उल्टे सीधे सवालात कर करके उसका दिमाग खराब करते रहे और वो उल्टे सीधे जवाबात दे देकर उनका दिमाग खराब करता रहा। यूं ही रात तकरीबन निसफ से ज़्यादा गुजर गई। आसिफ के लिए जान छुड़ाना दूभर हो गया। आखिर उसकी ये मुश्किल सैयद बशीरुल हसन ने आसान कर दी और वो वहां पहुंच आए थे। चलो बस करो, ओए मुंडियो, कुछ कल के लिए भी रख लो, आधी रात हो गई है। तब कहीं जाकर आसिफ की जान छूटी और वो अपने कमरे में आया। सभी अपने अपने बिस्तरों में घुस गए और तकरीबन आधे घंटे बाद जब सब सो गए तब आबद अपने बिस्तर से उठा और आसिफ के कमरे की तरफ बढ़ गया। आसिफ ने उसके कमरे में आने पर दरवाजे की जंजीर चढ़ा दी। मुंडे खुंडों का कमरा अलग था, बुजुर्गों का अलग, और औरतें सारी एक अलग कमरे में थीं। रात के इस पहर आसिफ और आबद के अलावा चंद अफराद जाग रहे थे और उन जागने वालों में सैयद बशीरुल हसन, सैयद खलीलुल हसन और सैयद ज़हीर अली थे, जो अपने ही किस्से छेड़े बैठे थे। उनके अलावा ख़वातीन के कमरे में जागने वालों में आसिफ की अम्मी, असद की अम्मी, उज़मा और महानूर थी। बात आसिफ और महानूर के रिश्ते की चल रही थी और महानूर का रुका हुआ दिल डूब और उबर रहा था। महानूर और उज़मा अपनी अपनी जगह यूं बेसुध होकर पड़ी थी जैसे सचमुच सो रही हों, और दोनों एक दूसरे की बेदारी से बेखबर थीं और माएँ उन दोनों से बेखबर थीं कि वो जाग रही हैं। महानूर के तो पूरे वजूद में एक मीठी मीठी ठंडक उतरती जा रही थी, जबकि उज़मा का दिल सुलग रहा था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई तपते हुए नेज़े की नोक से उसके दिल को छेड़ रहा हो, और आसिफ आबद उन लोगों की बेदारी और मौजूए गुफ्तगू से यूं ही बेखबर थे जैसे उन दोनों की बेदारी से दूसरे लोग। आसिफ आबद के पलंग पर बैठने के बाद खुद सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। हाँ कहो क्या बात है, आबद ने कहा तो आसिफ खामोश नजरों से आबद की तरफ देखने लगा। चंद लम्हे तक कमरे में खामोशी छाई रही तो आबद ने दोबारा आसिफ को मुखातब किया, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? आसिफ ने एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराता हुआ कुर्सी पर पुरसकून होकर बैठ गया। आबद, चंद दिन पहले घर में जो 3 वाक़यात वक़ूए पजीर हुए हैं, क्या तुमने उनका कोई तज्ज़िया किया है? मेरा मतलब है कि अंदाज़ा तो लगाया होगा कि ये सब क्यों हुआ। आसिफ की बात सुनते ही आबद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। हाँ किसी हद तक, और मैंने ये अंदाज़ा भी लगाया है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो सकती है। फिर क्या इस गंभीरता के मतलब कोई हल आया है तुम्हारे जहन में? नहीं, मैंने इस सिलसिले में सोचा ही नहीं। चंद लम्हे खामोशी के बाद आसिफ दोबारा बोला, आबद, सूरत हाल की संगीनी का किसी को अंदाज़ा नहीं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। मसलन तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है कि क्या हो सकता है? क्या तुम मेरे कहे कर यकीन कर लोगे? आसिफ ने गहरी नज़रों से आबद का जायज़ा लिया। क्यों नहीं, मेरा ख्याल है कि तुम मुझे बच्चा तो नहीं समझते होगे कि कोई खौफनाक सी कहानी सुनाओगे। आसिफ चंद लम्हे किसी गहरी सोच में पड़ गया। आबद, मैंने बहुत सोचो विचार के बाद यह फैसला किया है कि तुम्हें अपना राज़दार बना लूं। आसिफ कहने लगा। आबद गहरी नज़रों से आसिफ के चेहरे का जायज़ा ले रहा था। तुम्हें पता है कि शुरू दिन से मैं किन कामों में पड़ा हुआ हूँ। मुझे कुछ कामयाबी भी हुई, और चंद दिन पहले घर में जो कुछ भी हुआ है ये सब मुझे ख़त्म करने के लिए किया गया है। आसिफ ने इतना कहने के बाद आबद की तरफ देखा, मगर उसका चेहरा
बिल्कुल सपाट था। वो दोबारा कहने लगा, इस सारी कार्रवाई के पीछे एक हिंदू की जात है। वो काले इल्म का इतना बड़ा माहिर है कि दुनिया में शायद ही कोई इंसान उसकी टक्कर का हो। काले इल्म की मुख्तलिफ शाखें और मुख्तलिफ स्टेजें होती हैं। इल्म नजूम का शुमार भी किसी हद तक काले इल्म में होता है, क्योंकि हदीस में आया है कि जिसने कोई एक सवाल किसी नजूमी से पूछा, उसकी 90 दिन और रात की इबादत कारत गई। और अब तुम खुद सोच लो कि जो शख्स बाकायदा नजूम का माहिर होगा, उसकी ज़िंदगी में इबादत और नेकी क्या होगी। मेरा ये बात कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि तुम ये समझ लो कि इल्म नजूम भी काले जादू की ही एक शाख है। वो हिंदू काले जादू की तीसरी शाख पर है और उसकी 10 स्टेजें वो तय कर चुका है, यानी वो 10 बुरूज का अमल है। और ये काले इल्म की बहुत बड़ी स्टेज है, क्योंकि आज तक बड़े से बड़ा ज्ञानी भी 7 स्टेजों से आगे नहीं जा सका, और अब वो 11वें बुर्ज का आमल बनना चाहता है। जबकि उसके अलावा भी वो बहुत सी नापाक, शैतानी और मकरूह अमल कर चुका है, और लातादाद शैतानी ताकतें उसके कब्जे में हैं। मगर तुमसे उसे क्या दुश्मनी हो गई है? आसिफ के एक ज़रा रुकते ही आबद बोल पड़ा, ये बात खुद मेरी समझ में नहीं आई, तो इन सब बातों का इल्म तुम्हें कैसे हो गया? बिच्छू से काले जादू के जानने वालों के अलग अलग शनाख्ती निशान होते हैं जो उनके मर्तबों की हदबंदी करते हैं, और बिच्छू सिर्फ एक पखरुमशी का ही शनाख्ती निशान होता है। काले जादू की ज़बान में पिखरम वशी 10 दासों के सवार को कहते हैं, यानी 10 बुरूज का हामल। और उसके अलावा मैंने उसके मुतल्लिक जानने के लिए जायचा भी खींचा था, मगर हैरत अंगेज तौर पर सितारे इधर उधर हो जाते हैं। कमर को पकड़ूं तो मुश्तरी 2 खाने पीछे चला जाता है, मुशरी को पकड़ता हूं तो कमर आगे निकल जाता है। इसी वजह से मैं उसके मुतल्लिक ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं कर सका। क्या तुम्हें आगे का कुछ इल्म है कि अब वो क्या वार करने वाला है? नहीं, मैं बावजूद कोशिश के नहीं जान सका, मगर इतना मुझे यकीन है कि अब वो और भी ज़्यादा खतरनाक वार करेगा। आसिफ ने गहरी संजीदगी से कहा, फिर अब क्या सोचा है तुमने? मुझे एक अमल करना है और उसकी तकमील के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि जो अमल मुझे करना है उसके लिए मेरे साथ एक आदमी का होना बहुत ज़रूरी है, और मैंने यही मुनासिब समझा कि तुम्हें अपना राजदार बना लिया जाए। कैसा अमल है और मुझे क्या करना होगा? आबद ने इस्तफसार किया तो आसिफ उसे अमल की नोइयत समझाने लगा। आबद बड़े गौर से उसकी बात सुन रहा था, और फिर जब आसिफ की बात मुकम्मल हो गई तो आबद ने कहा, इसका मतलब है कि ये अमल आज सुबह ही हो जाना चाहिए।